Dear learners, you all are welcome to NIOS Senior Secondary Course Mathematics program. Dear learners, you know that in our society we are very much acquainted with a object is one or many ways related to another object. इवनली हमारा ह्यूमन बीइंग के बात करेंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर एक मैं फैमिली का एग्जांपल लूँ, एक फैमिली पे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर बहुत सारे मेंबर होते हैं और अगर हम विचार करेंगे देयर इज ए रिलेशन बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर. सिमिलरली एक फैमिली पे अगर हम बात करेंगे देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फादर एंड मदर, इवनली हस्बैंड एंड वाइफ. इन दिस इज द वे ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन विथ अनदर पर्सन. अगर मैं बात करूं मेरा फ्रेंडशिप है, मतलब फ्रेंडशिप इटसेल्फ है रिलेशनशिप, एंड दैट रिलेशनशिप इज वी जनरली कॉल्ड एज ए सोशल रिलेशनशिप. अगर हम मैथमेटिक्स का बात करेंगे, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि बहुत सारे नंबर रहता है और मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द वी कॉल्ड एज ए स्टडी ऑफ नंबर्स. नंबर्स है, सिंबल है, बहुत सारे चीज़ रहता है जो कॉन्सेप्ट है. तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, within mathematical concept there are different relationship, and now we will be discuss about the relations and function. The function is the second step. From the relationship the functions are developed. अगर मैथमेटिक्स का हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे, आपको पता होगा when talking about 10 is more than 8, or we can say 5 is less than 7. Here more than and less than are the relationship between the two number. When talking about 5 is less than 7, that means less than is the relationship between 5 and 7. अगर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल देखूंगा कि when talking about L is perpendicular to M, perpendicular itself a relationship. Okay, so there are certain different relationship exist between the number, between the mathematical concept. But अगर relations function बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करना है, जानना पड़ेगा, तो first we must have to understand the concept of order pair. And when talking about order pair, the first concept that is involved we call as the order pair. You see, the first and foremost concept which is required to understand relations and functions is the order pair. What do we mean by order pair? Very simple. When talking about order pair, pair means आपको पता है दो. Order pair means in order pair there are two elements are exist. We can say X is the element, Y is the element, but when talking about order pair, that means very simple things. That means the two element, or we can say two component in a definite, we talking about in a definite order, in a definite order. That means when talking about XY, XY is the order pair, it is the in a definite order. We can say this is the in a definite order. Definite order means when talking about definite order, X, Y, X is called the first component. This is called the first component, or we can say first element. दोनों का मतलब बराबर है. When talking about Y, Y is the second component, or we can say second element. That means when talking about a order pair consists of two elements in a definite order. That is the very important things. When talking about definite order means पहला first component आएगा, second component आएगा. That is the important things. When talking about XY, XY is an example of an order pair. अगर मैं बात करूं
x y, y x, whether both are same or any different. That means x y is an order pair, y x is an order pair, whether x y order pair is equal to the order pair y x. It is not. It is not. Why it is not the same order pair? Because the elements are different. Because x is not equal to y is not equal to x. That means when talking about an order pair must have a defined order, definite order. That means first element is the first component, second element is the second component. Now when talking about the order pair, that is very important things, two elements exist in an order pair, और order pair को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे मैं बताया था x y is an example of order pair. Similarly when talking about other examples of an order pair, हम लोग को पता है अगर कोई एक पॉइंट प्लेन पे एग्जिस्ट है, प्लेन पे अगर कोई एक पॉइंट लेना है, आपको प्लेन बारे में पता है, इन ए प्लेन देयर आर two coordinate, one is x coordinate, another is y coordinate. When talking about x y, suppose one point I have taken 2 3 -3 2, और मैं बात करूं -5 -3, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर मैं बात करूं दोनों प्लस, वन इज +2 अनदर इज -3. हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ order pair. Okay, that thing is, this is the coordinate of a point, this is the coordinate another point, because ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, एज पर द नेचर ऑफ द क्वाड्रेंट, बिकॉज दिस इज प्लस प्लस, दिस इज माइनस प्लस, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस. इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डर पेयर, एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है कि कोई एक पॉइंट, एनी पॉइंट दैट एग्जिस्ट इन ए प्लेन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर पेयर. नाउ एन important thing is when talking about the equality of an order pair. Second concept that is involved that we taught as a equality of order pair. Two order pair, for example अगर मैं बात करूं x y is an order pair and second order pair is the a b is the another order pair. When talking about two order pair are said to be equal when x equal to a and y equal to b. This is the subject to condition. That means ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक ऑर्डर पेयर है, हम लोग ये दोनों को इक्वालिटी कर रहे हैं, मतलब इन व्हिच कंडीशन, इन व्हिच सिचुएशन ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होंगे. कब, कौन सा सिचुएशन पे? एक सिचुएशन है व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट, यू सी दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर. दैट मीन्स x इक्वल टू a. और सिमिलरली अगर हम बात करूंगा कि y इज द सेकेंड component of first order pair, b is the second component of second order pair. That means when y equal to b, then we can say this order pair is equal to order pair AB. That means the order pair x y is equal to the order pair AB when x equal to a, y equal to b. That means the first component of the first order pair is equal to first component of second order pair,
and the second component of first order pair is equal to second component of second order pair. Then we can say दो ऑर्डर पेयर बराबर होंगे. एक अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेके बात करूं, इक्वालिटी ऑफ द ऑर्डर पेयर. यू सी, सपोज एक एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूं, x प्लस 3 और दिस इज y इक्वल टू 5 and this is 7. Find the value of x and y. That means these two order pair are same. Now question is find the value of unknown quantity x and y. Now simple, when talking about two order pair are equal to each other, that means x plus 3 equal to 5, because the first component of the first order pair must have to equal to first component of the second order pair. That means x plus 3 equal to 5, that implies x equal to 5 minus 3 which equal to 2, and y के साथ बराबर कर लेंगे, y equal to 7, और क्योंकि यहाँ पे और कुछ चीज़ नहीं है, so simply we can say the value of x is equal to 2, the value of y equal to 7. This is all about the order pair. और रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने के लिए और एक इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट concept, because from this concept the relation and function can be understood. Otherwise it is very difficult. दो concept involved है जो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए. दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द ऑर्डर पेयर, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं. नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यू सी, व्हेन टॉकिंग अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का तो मतलब यही है, मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं गुणनफल. लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मतलब होता है, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. सपोज हमको पता है नॉन एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टॉकिंग अबाउट सपोज A and B, I am talking A and B are two non-empty set. Both are non-empty set. Non-empty set. Suppose both are two non-empty set. The Cartesian product A and B, in generally we written as A cross B. Cartesian product का जो होगा सिंबल पे A cross B. That means Cartesian product of A and B, which is equal to set of all order pairs between A and B. That means it shortly we can write x y such that x element of A and y element of B. A cross B equal to x y order pair such that x element of A and y element of B. Then we can say this is the Cartesian product of A and B. But there is a slightly different. When talking about B cross A is a slightly different, the order pair, because when talking about B cross A, this will be the yx order pair such that y element of B and x element of A. Just reverse. This is the A and B order pair, this is the B and A order pair. That means from these two order pair we can conclude that A cross B
ये जो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर नहीं होंगे। और ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं उनको बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग बात किए थे when talking about, सपोज एक सेट है, सपोज A एक सेट है which is equal to 1 2, A is the one set, the elements are 1 2, B is the another set, the elements are suppose A B. Now what is the Cartesian product of A and B? As per the example we know A cross B हो जाएगा, क्या होगा 1A, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई फ्रॉम दिस लाइन, उसको हम इसी बेसिस पे ही हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ A एंड वाई एलिमेंट ऑफ B, दैट मीन्स द ऑर्डर पेयर क्या होगा 1A 1B एंड 2A 2B, ये टोटल, दैट मीन्स सभी का सारे जितने ऑर्डर पेयर होगा, देख कितने ऑर्डर पेयर मिला, 4 ऑर्डर पेयर मिला, 1A 1B 2A 2B, there are the 4 order pairs. When talking about Cartesian product is the collection of all order pairs from A to B. This is called the order pair of A cross B. अगर हम बात करेंगे B क्रॉस A, जैसे A क्रॉस B था, B क्रॉस A क्या होगा, क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम सेम एग्जांपल लिए थे A1 2 B A B था, नाउ B क्रॉस A क्या होगा, व्हेन टॉकिंग अबाउट B क्रॉस A हो जाएगा द ऑर्डर पेयर ऑफ B से शुरू होगा, मतलब A1 B1 ये एक ऑर्डर पेयर है, और क्या होगा A1 B1, देन हम लिख सकते हैं A2 एंड B2, ये it will be the order pair or we can say the Cartesian product of B to A. Now you see A cross B, here the A cross B elements and B cross A. You just observe, you will find B cross A is not equal to A cross B. ये दोनों सेम नहीं है, that is the very important things. और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर एक सेट पे 2 एलिमेंट है, अनदर सेट में 3 एलिमेंट है, तो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलेगा। अगर हम बात करेंगे, आपको पता है यहाँ पे 2 एलिमेंट था, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सो A क्रॉस B कितना आएगा, आ गया ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर आ गया। दैट मीन्स इफ दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू M एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू N, देन A क्रॉस B का जो M क्रॉस N नंबर ऑफ एलिमेंट हमको पता चल जाएगा। अगर एक सेट पे सपोज एनी सेट ए सेट नॉन एम्प्टी सेट हैव 3 एलिमेंट्स, सपोज A जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, A मॉडुलस इक्वल टू 3, दैट मीन्स A एक नॉन एम्प्टी सेट है जहाँ पर 3 एलिमेंट है। अगर हम B बात करूँ, एक नॉन एम्प्टी सेट है, 2 एलिमेंट है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, A क्रॉस B पे हो जाएगा 3 क्रॉस 2 विच इक्वल टू 6 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो बन जाएगा। ये एक मतलब एक आसान तरीका है हमको पता होने के लिए। अगर दैट मीन्स वेरी सिंपल, अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पता चल गया, नंबर ऑफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना ऑर्डर पेयर होगा, ये चीज़ हमको बाय यूजिंग दैट फार्मूला A क्रॉस B का जो मॉडुलस है ये हो जाएगा
A मॉडुलस इंटू B मॉडुलस, दैट मीन्स 3 क्रॉस 2, जहाँ पर यहाँ पे हमको 6 एलिमेंट मिल गया. नाउ दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशन. हम लोग क्यों पढ़े ये जो आप ऑर्डर पेयर हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको समझ सकते हो. सो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट में को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम बात किए थे, फर्स्ट वी कम टू द रिलेशंस. ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये रिलेशंस एंड फंक्शन को लेके आगे मैथमेटिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे अगर हम क्लैरिफाई है रिलेशन एंड फंक्शन बारे में. सो हमको ये रिलेशन क्या है उसको बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं बात करूँ रिलेशंस, दैट मीन्स लेट A and B are two non-empty set. I am talking about non-empty set. A and B are two non-empty set. Okay? A relation, and relation को हम R से define करते हैं. A relation from A to B. अगर मैं बात करूं, A relation from A to B is the subset of, अगर आप बात करना जानना जरूरी है, is the subset of A cross B. That is the very important thing. That means a relation from A to B, that means A and B are non-empty set, is the subset of A cross B. A cross B का एक सबसेट होगा. A cross B क्या है? The Cartesian product of A and B. Okay, that means a relation A to B is the subset of A cross B. That is important things. अगर हम ये चीज़ को बात करेंगे और आसानी से हो जाएगा R सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B. अगर सिम्बोलिकली उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे R सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B. That is called the relation from, R stand for relations. Relation from A to B is the subset of A cross B. और एक एग्जाम्पल से हम बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे. जैसे मैं बात किए थे कि R सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सपोज A एक सेट है, the elements are 1, 2. Okay, and B एक सेट है, the elements are A, B. Okay, ये रिलेशन, सपोज एक रिलेशन R1, बहुत सारे रिलेशन होगा, R1, R2, कितने रिलेशन होगा ये भी पता चल जाएगा. A एंड B बीच में कितना रिलेशनशिप वी कैन फाइंड आउट, वो भी पता चल जाएगा. लेकिन सपोज एक R1, आपको पता है 1A, अगर मैं बात करूं ऑर्डर पेयर, 1A एक ऑर्डर पेयर होगा. सो वी कैन से R1 1A और 1B. सपोज एक रिलेशन है 1A के साथ 1B के साथ, ये एक ऑर्डर पेयर बनाया. सो वी शॉर्टली वी कैन राइट 1 related to A. That means 1 is related to A. Similarly, 1B is the order pair which comes under the relation R1. We can also write 1 related to B. 1 is related to A, 1 is related to B. That is the R1. Okay. Suppose R2 लिया, R2 लिया सपोज, सिमिलरली और एक ही एलिमेंट को और एक ऑर्डर पेयर किया, सपोज 2A. सो वी कैन से R2, that means 2 related to A. We shortly write, that means 2 is related to A. This is the we call as the relations.
the relation from a set A to B. Now think is दो सेट है, सपोज एक सेट है, सेट A have consist of two element 1 2. B is the another set, the elements are also 2 A B. Now कितने रिलेशनशिप हो पाएगा फ्रॉम A to B? A to B पे रिलेशनशिप हो जाएगा आपका दो रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B ये बन जाएगा 2 to the power 2 into 2. दैट मीन्स अगर ये m एलिमेंट है, ये n एलिमेंट है, नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ रिलेशन हो पाएगा दैट इज 2 to power mn. दैट इज द फॉर्मूला. अगर 3 है, ये 2 है, 2 to power 3 क्रॉस 2 दैट मीन्स 2 raised to the power 6 नंबर ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो पाएगा. नाउ दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. और रिलेशन को और एक तरीका से हम हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रिलेशंस and what is the domain and range of relation. Dear learners, we will be brief discuss about relations function. Right now we will take a short break. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें, शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर, शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं
Dear learners, we are discussing about the relations and function. When talking about the relations from a set, non-empty set from A to B is the subset, I am repeating, subset of A cross B. That means Cartesian product of A and B. This is called the relations. When talking about the relations, we can write a relations, जैसे हम पहले डिस्कशन किए थे कि एक ही पर्टिकुलर फॉर्म पे हम लिख रहे थे, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म. लेकिन ऐसे नहीं है, रिलेशन को हम बहुत अलग अलग तरीका से हम लिख सकते हैं. बेसिकली दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. रिलेशंस इन मैथमेटिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 different ways. The first way is called the roster form. When talking about the roster form, जहाँ पर हम रिलेशन को R इज इक्वल टू, जैसे हम लिख रहे थे 1A 1B 2A 2B. This is called the relation, that means representation of relation in a particular form. Dear learners, we are just discussing about the representation of relations. किस किस तरीका से रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे. द फर्स्ट वे इज द वी कॉल एज द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म पे ये रिलेशन को हम जो राउंड ब्रैकेट को विद इन कर्ली ब्रैकेट में उनका ऑर्डर पेयर को इंक्लूड करते हैं. जैसे 1A इज द वन ऑर्डर पेयर, 1B 2A 2B, ये सबको एक डिफरेंट सेपरेट थ्रू ए कॉमा, आप देख सकते हैं सेपरेट थ्रू द कॉमा, then it is called the roster form. The another form of relation to represent is called the set builder form. When talking about, that is called set builder form. Set builder form पे वो रिलेशन को, सेम चीज को, मतलब सेम आएगा, एक पर्टिकुलर वे पे लिखते हैं. जैसे हम लिखते हैं, जैसे एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए and y element of b, and a and b are defined in a particular manner, particular way. This is called the set builder form. Okay, x y जो है एक particular method, particular way पे वो related है. This is called the set builder form. Another form, this is called in generally diagrammically form. डायग्रामिकली फॉर्म क्या है? अगर हम बात करेंगे, एक विजुअल्स हम दिखाते हैं जिस पे और आसानी से आप समझ पाएंगे. आप देख सकते हैं ये जो विजुअल से दो रिलेशन है, दी एलिमेंट्स आर, आप देख सकते हैं कि 2 2 के साथ, 4 3 के साथ, 3 2 के साथ, जो भी है, तो ये रिलेटेड मीन्स एक आरो मार्क से, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के साथ एक आरो मार्क से वो रिलेट है. दैट इज कॉल्ड द डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशंस. नाउ विल बी डिस्कस, दैट इज, अगर हम बात करेंगे, एक विजुअल हम देखेंगे जिस पे आप देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 4, 4 is related to 4 and 3 is related to the another elements. That means here आप देख सकते हैं कि the relationship, ये जो relationship है 1 6 2 4 जो है, ये उनको हम एक within bracket में हम उनको include किए हैं. That means this way of representation is called the diagrammically representation of the relations. Now dear learners, we come the another concept that is involved in the relation, that is called the domain and range. ये एक बहुत important concept है. रिलेशन पे एक concept है, that is domain of relation. ये क्या है? डोमेन ऑफ रिलेशन.
आप देख सकते हैं जैसे मैं एक रिलेशन लिया है, सपोज R इज ए रिलेशन, द ऑर्डर पेयर आर 1A 2B 3C सपोज 4D। आप देख सकते हैं दिस इज द रिलेशन, द ऑर्डर पेयर्स आर 1A 2B 3C एंड 4D। तो यहाँ पे जो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन क्या होगा, दैट इज वी राइट एज DR। DR होगा डोमेन ऑफ रिलेशन which is the first element of the order pairs। that means first element क्या है, 1 2 3 4। that means DR को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। that means the domain D शॉर्टली हम लिखते हैं DR। DR मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ 1 2 3 4। और उस चीज को हम और सिंपली तरीका से लिख सकते हैं DR X such that X element of A for XY element of A cross B for Y element of B। ये तो हम इसी फॉर्म पे लिख दे, सेट बिल्डर फॉर्म पे, मतलब द एलिमेंट्स सारे एलिमेंट होगा X such that X element of A, जो that means first element, all first element of the order pair is the domain, that is called domain of R, that means domain of relation R, we write as a DR। और एक कॉन्सेप्ट होता है रेंज, RR, that is a very important concept, that is called RR। when talking about RR we call as a domain, that is called the range, range RANGE, range of R। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था हमारा DR स्टैंड फॉर आपका डोमेन, RR स्टैंड फॉर द रेंज। रेंज में ये बन जाएगा, अगर मैं बात करूँ रेंज का कॉन्सेप्ट, दैट इज RR क्या होगा, RR होगा द सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स ABCD, that means range of R which is equal to ABCD। ABCD क्या है आपको पता है, ABCD ये सारे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है। देन वी कॉल एज, अगर हम RR को हम एक सेट फॉर्म पे लिख रहे हैं, वी कैन से Y such that Y element of B and where XY, ये तो कॉमन फॉर्मेट है, XY element of A cross B for X element of A। This is called the range of the relations। That means relation पे दो concept हम पढ़े, one is domain, another is the range। domain is nothing but, domain का मतलब यही है the set of the first element of the relation, और range जो है सेकेंड एलिमेंट। और एक कॉन्सेप्ट बहुत इन्वॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड द को डोमेन। तो तीनों कॉन्सेप्ट है, वन इज डोमेन जिसको हम अभी जस्ट सर्च किए थे, वन इज डोमेन, these are the components, different components of relation। second component is the range, third component is the codomain। अगर डोमेन का बात करो, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, कोई एक रिलेशन का दो फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन। सिमिलरली रेंज का बात बोलो, द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज। और सिमिलरली हम बात करें कि कोडोमेन, कोडोमेन में क्या फर्क है, कोडोमेन
कभी कभी रेंज के साथ बराबर हो जाता है, कभी कभी फर्क होता है। लेकिन कोडोमेन का कॉन्सेप्ट ये है, कोडोमेन का मतलब है द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट मीन्स सेट बी। अगर हम रिलेशन ए टू बी ले रहे, सेकेंड सेट बी है, बी पे जितने सारा एलिमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ the relations. That means there are three different components involved in the relation. One is domain, second is range, third is the codomain. Now we come, this is the basically the very important information that related to relations. अगर एक एग्जाम्पल लेने से हमको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे, क्योंकि डोमेन, रेंज, कोडोमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Suppose relation R, the elements are suppose 1, 2, 3, 4, 5, एक रिलेशन है। The question is what will be the domain of the relation, what is the range of the relation and what is the codomain of the relation. आप देख सकते हैं, when talking about dr, domain of r, which is equal to क्या होगा, आपको देख सकते हैं, the first elements that is 1, 2, 3, 4. The domain of r equal to 1, 2, 3, 4. That is the domain of r. और range of r that is rr, which is equal to सेकेंड एलिमेंट 2, 3, 4, 5. आप देख सकते हैं सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 3 है, यहाँ पे एक सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे मतलब ये ऑर्डर पेयर का एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर का है, दैट मीन्स 2, 3, 4, 5. दैट इज द रेंज. अगर हम बात करूँ कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन मतलब है, आप देख सकते हैं कोडोमेन ऑफ COR, कोडोमेन ऑफ R. कोडोमेन ऑफ R का मतलब है कि आप देख सकते हैं कि आप ये जो एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 ये सेकेंड सेट का एलिमेंट है. तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट दैट मीन्स 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 इज द, आप देख सकते हैं इज द कोडोमेन ऑफ R. हियर रेंज ऑफ R दैट मीन्स ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पे रेंज ऑफ R और कोडोमेन R के साथ बराबर हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द थ्री कंपोनेंट, दैट इज डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R एंड कोडोमेन ऑफ R. नाउ वी कम द अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द फंक्शन. हम रिलेशन बारे में चर्चा किए, आपको पता है रिलेशन से ही फंक्शन डेवलप होता है. फंक्शन अगर एक लिटरल मीनिंग देखेंगे, फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑपरेशंस ऑल्सो. अगर हम बात करूं फंक्शंस, ये फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. सारे रिलेशन पे फंक्शन नहीं होता है. फर्स्ट आई एम जस्ट लाइक टू टेल यू, ये जो फंक्शन कॉन्सेप्ट एक लैटिन वर्ड से डेवलप है, दैट लैटिन वर्ड्स इज कॉल्ड द ऑपरेशन, जिसको हम प्रक्रिया बोलते हैं, और रिलेशन को संबंध बोलते हैं. संबंध से प्रक्रिया डेवलप होता है. और जहाँ पर हम फंक्शन का बात करते हो, वी समटाइम्स कॉल्ड एज ऑपरेशंस, और मैथमेटिकली उसको आगे हम बोलते हैं, ये इसका मतलब सिनोनिम टू ईच अदर, और हम बोलते हैं मैपिंग. ये फंक्शन हो कि ऑपरेशन हो, मैपिंग है, ये इसका मतलब तीनों का बराबर है. जैसे मैं बात किए थे, ये फंक्शन, ऑपरेशन, मैपिंग, ये स्पेशल टाइप. फंक्शन का मतलब फर्स्ट जो फीचर्स है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है, लेकिन सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलते. लेकिन रिवर्स इज ट्रू, जैसे ऑल फंक्शन आर रिलेशन,
but all relations are not function. For particular रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। बात है कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन को हम रिलेशन बोलेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर हम बात करूँगा सेकेंड कंडीशन पे, ए रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी, इज टू बी फंक्शन। अगर ये एक फंक्शन बनेगा, यहाँ पे दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कॉल इट इज द फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर ऑल, ये मैथमेटिकल चीज है थोड़ा समझना। फॉर ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए मतलब सभी एलिमेंट ए का देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है, देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट ऑफ बी सच दैट ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट ऑफ बी, ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। एंड नो, सेकेंड कंडीशन है नो टू ऑर्डर पेयर, no two order pair have the first element। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। अदरवाइज वो फंक्शन को हम एक फंक्शन, वो रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल पाएंगे। और एक आसानी से हम कुछ सिंबल से हमको चीज़ को पता कर पाएंगे। फंक्शन को बारे पे जैसे हम बात किए थे, ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन व्हिच एवरी इनपुट इज पेयर विथ एग्जैक्टली वन आउटपुट, दैट इज द फंक्शन। दैट मीन्स ये फंक्शन इज ए रिलेशन, जिसको हम पहले बता दिए थे, एक फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, इन व्हिच एवरी इनपुट इज पेयर विथ एग्जैक्टली वन आउटपुट, मतलब एक ही साथ दूसरा आउटपुट जो होना जरूरी है। सेकंड जो चीज़ है, इन ए फंक्शन नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, जो चीज़ हम लिख चुके हैं जो सेकंड कंडीशन पे है, देन वी कॉल दिस इज द फंक्शन। नाउ अनदर डिस्क्रिप्शन, जो अनदर वे ऑफ डिस्क्रिप्शन जो यही है, जो चीज़ में हम बता चुके हैं कि दोनों एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड है कि सभी ए फिलअप होगा। आप देख सकते हैं ये जो एक सेट है, आप देख सकते हैं सेट में द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 एंड सेकंड जो सेट है द एलिमेंट्स आर 2 4 6 8 10। यस, आप ये दो कंडीशन को हम चेक करना है वेदर दिस, अगर ये एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो रिलेशन है, सारे रिलेशन जैसे मैं बताए थे ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो हम कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट दैट इज वन इज एसोसिएटेड विथ 4, जो मैपिंग कर रहे हैं हम, देखिए 4 इज ऑल्सो एसोसिएटेड इज अनदर एंड 2 इज अनदर एंड लास्ट 1 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अनदर एलिमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट जितने भी एलिमेंट है सेट ए का सारे फिलअप है, मतलब एक ही साथ दूसरा जुड़ा है, कोई भी बच्चा नहीं है। अगर एक बच गया मतलब जुड़ा नहीं है, देन वी कैन नॉट से इट इज द फंक्शन। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन है कि दोनों ऑर्डर पेयर जो है, कोई एक दोनों ऑर्डर पेयर का सेम एलिमेंट नहीं है। सो सेफली वी कैन कंक्लूड द फर्स्ट कंडीशन इज satisfied, similarly the second condition is satisfied, so this relation is called the function। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। अगर हम और एक एग्जांपल बात करेंगे कि यही हमारा फंक्शन फोकस होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब फर्स्ट सेट सारे फिलअप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कोई दोनों ऑर्डर पेयर का सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई
then we can call as this type of relation is called the function. अगर हम ये इसी टाइप का अगर रिलेशन आप देख सकते हैं, देखिए ये दो सेट है 1 2 3 4, ये सेट ए का है, सेट बी का भी 3 एलिमेंट है। आप सारे सेट ए का जितने भी एलिमेंट है बी के साथ वन वे दे आर एसोसिएटेड, एंड वो जिसको हम रिलेशन, जो रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, थर्ड केस, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, आप जस्ट ऑब्जर्व करिए कि किसके साथ कौन मैचिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सेट ए का सारे एलिमेंट कोई एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक रिलेशन होगा, ये भी उनको हम फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट वो एसोसिएटेड है, दैट मीन्स ए का सारे फिलअप है और कोई दो ऑर्डर पेयर का सेम एलिमेंट नहीं है। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। अभी हम थोड़ा और आगे मूव करेंगे। ये जो केस आप देख सकते हैं, देखिए सेकेंड एलिमेंट जो है, सेकेंड एलिमेंट दोनों के साथ बराबर है, मतलब दोनों के साथ अटैच है, दोनों के साथ पेयर है। सो इन दिस केस वी कैनॉट से दिस इज द फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं होगा? आप 2 4 के साथ जुड़ा है, 2 और किसी के साथ जुड़ा है, सो वी कैनॉट से दिस इज द फंक्शन। इज द लास्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसको हम ये टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 1 2 के बाद जो 3 है, 3 एलिमेंट जो ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो होना जरूरी था। अगर नहीं है सो वी कैनॉट से दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन होने के लिए ये जो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम क्लोजली हम बात करेंगे, that means when talking about whether a relation is the function, that means all relations are not function, but the reverse part, that means all functions are relations. एंड अगर डोमेन रेंज का बात करूं, सेम कॉन्सेप्ट, जो रिलेशन पे है वही चीज़ फंक्शन पे है। जो चीज़ हमको यहाँ अगर 5 -2 -3 4 3 3 -1 -1, यहाँ पे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जैसे हम रिलेशन पे हम निकाल रहे थे, जो वैल्यू निकाल रहे थे, सिमिलरली कॉन्सेप्ट आपका फंक्शन पे भी आएगा। दैट मीन्स ये डोमेन रेंज जो है रिलेशन के साथ जो कॉन्सेप्ट है और फंक्शन के साथ सिमिलर आएगा। सो नाउ क्वेश्चन इज, हमको एक रिलेशन को हम फंक्शन है कि नहीं है पता कैसे करना है। ये चीज़ हम आसानी से हम समझ पाएंगे जब हमारा पास ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट हमको पता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता है, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमको रिलेशन बारे में पता है, रिलेशन बारे में एंड फंक्शन बारे में पता है, तब ये चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं whether a relation is the function or not. That is the very important things. Dear learners, today we have basically discussed about relation and function. This is the very important concept involved in your mathematics, that is relation and function, which is essential to understand all other concept involved in mathematics. I hope you enjoyed learning with me, and I expect that you must have regularly watch our two channel, that is Swayam Prabha channel 27 and 28, and any kind of doubt you can directly log into www.nios.ac.in. Thank you.